Okay, so next part for problem solving of control system. Hello. So in a problem number 1.3, प्रॉब्लम नंबर 1.3 सो हम तुम लोग को बताए थे कि कंट्रोल सिस्टम का जो प्रॉब्लम इट में आता है, समटाइम बहुत इजी आता है, समटाइम प्रैक्टिस पर आता है कि और समटाइम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है. सो इन 1993 में 1 मार्क्स का आया था. So signal flow graph is used to obtain the stability of system, transfer function of the system, controllability of the system or observability of the system. What is the correct answer? Hello. What is the correct answer? Yes. B, so sir. Correct answer is option B, transfer function of the system. Okay. In the problem number 1.4, please write down here the transfer function of the system. A closed loop transfer function of the system is given by CS by RS is equal to 2 into S minus 1 by S plus 2 into S plus 1. For a unit step input, the output is. The output is. So very simple question. So transfer function of the system जो है वो कितना दिया हुआ है? वो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम जो है वो कितना दिया हुआ है? CS by RS is equal to 2 into S minus 1 divided by S plus 2 into S plus 1. S plus 2 into S plus 1. और हमारे पास इनपुट क्या है? What is the input? Is step input, and you know the transfer function of step input is equal to 1 by S. And what is the CS? CS is equal to 2 into S minus 1 divided by S plus 1 into S plus 2, S plus 2 into RS, and you know what is the value of RS is equal to S. Yes or no? So यहाँ पे हम इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? Again, what will be the value of CT? CT is equal to क्या होगा? Inverse Laplace of CS. That is यहाँ पर तुम्हारा 3 फैक्टर है. In denominator, one is S, one is S plus 1, and third one is S plus 2. So यहाँ पर क्या होगा? पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. सो हमारे पास 3 फैक्टर आएगा. K1 by S plus K2 by S plus 1 plus K3 by S plus 2. And using residue theorem, find the value of K1, K2, K3. Please solve it. Please solve the value, solve and find out the value of K1, K2, K3. K1 is equal to क्या होगा? K1 is equal to क्या होगा? Hello, what is the value of K1? Sir, -3. S into CS when S is equal to 0. So S कैंसिल आउट हो जाएगा. S का वैल्यू 0 पुट करोगे. So इसका वैल्यू कितना आएगा? -2 divided by 2. That is equal to -1. Yes or no?
Yes, sir. Okay. And what is the value of K2? S plus 1 into CS when S is equal to minus 1. तो कितना आएगा जल्दी बताओ? 4. 4. Just wait. Minus 1 minus 4. Okay, 4. 4. फिर से एक बार चेक कर लेते हैं. S plus 1 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा एंड S is equal to -1 पुट करेंगे तो -1 -4 ऊपर में हो जाएगा एंड नीचे में -1 into 1 तो -4 by -1. Yes, 4. Very good. And what is the value of K3? Again K3 का वैल्यू कितना आएगा? -3. K3 is equal to क्या होगा तुम्हारा? S plus 2 into CS when S not is equal to S is equal to -2. So S plus 2 cancel out हो जाएगा. कितना आएगा बताओ? 2 into -2 -1 divided by -2 plus -2 plus 1 and -2. Yes or no? Yes or no? -3. -3. Damn sure. Yes, sir. 2 कट जाएगा. So finally तुम्हारा जो एक्सप्रेशन आया CS is equal to CT is equal to क्या हो गया? इनवर्स लैप्लास ऑफ what is value of -1 by S plus what is value of K2? 4 by S plus 1 and -3 by S plus 2. Okay, so इसको जब सॉल्व करेंगे so -1 into UT or you can directly say that UT मतलब या T UT and ये क्या हो जाएगा 4 into e to the power -t and -3 into e to the power -2 और ये सब में UT मल्टीप्लाई है. तो यही तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा. सो वेरीफाई कि कौन सा ऑप्शन जो है वो तुम्हारे साथ मैच कर रहा है, तुम्हारे आंसर के साथ मैच कर रहा है. ऑप्शन ए बी सी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आंसर आया था -1 A number into 4 into e to the power -t -3 into ut. तो ऑप्शन नंबर ए. So correct answer is option number A. Very simple. In problem number 1.5, again the application of block diagram reduction, or you can say that using the Mason's gain formula. Find out the overall transfer function. तुमको दोनों ही पता है जिस मेथड से प्रॉब्लम जल्दी बनेगा उसी मेथड को हम लोग को यूज करना. अगर you are more confident in block diagram reduction technique, then you can proceed with the block diagram. If you are more confident in Mason's gain formula or in the signal flow graph, you can proceed with the signal flow graph. No problem. But the best option to solve a block diagram reduction problem must be using the Mason's gain formula. Please draw and find out the answer. ड्रॉ किए? हेलो. Yes, sir. सो तुम बनाओगे या मैं इसको आगे बना दूं?
सर बन जाएगा। बनाओ सॉल्व। तो कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हो, मेसेज गेन फॉर्मूला या फिर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक? सर मैसेज गेन। तो मेसेज गेन फॉर्मूला। एंड व्हाट अबाउट द अदर्स? कुंदन कुमार, कुंदन कुमार, कुंदन कुमार, आर यू देयर? ओके, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं कर रहे हो तो हम उसको बना देते हैं, जिससे नहीं सर बन रहा है। यस, ए नंबर। ए नंबर, ऑप्शन नंबर 4.5 का। सो करेक्ट आंसर इज 4.5 का ए। और किसी से बना या हमको बना देना पड़ेगा? शिल्पी साहब, तुम तो बाहर में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुंदन कुमार, तुमसे बना या हम इसको सॉल्व करके बता दें? हेलो, कुंदन कुमार, कुंदन कुमार। ओके, सो आई थिंक शिल्पी साहब, शिल्पी साहब, यस सर। इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें या फिर इसको आगे बढ़े हम? सर बता दीजिए एक बार। ओके, सो बेटर इसको सबसे पहले हमको अगर इसको बनाना होगा, सो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर हम मेसन गेन फॉर्मूला से बना यूज करते हैं, तो सपोज यहाँ पे जो समर ब्लॉक है, यहाँ से सपोज यहाँ पर तुम्हारा G1 है, अगेन यहाँ पर एक नोड है, जबकि बताए थे फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम टू इसमें कन्वर्ट करना हो, तो जहाँ फ्री सिग्नल का वैल्यू चेंज हो रहा है G2, एंड अगेन G2 सपोज, एंड अगेन G3, एंड फाइनली तुम्हारा ये तुम्हारा C हो गया, एंड दिस वन द R। ओके, so again from G3, suppose यहाँ से G1 and G2 के बीच में, and there is minus H2, and G2 and G3 के बीच से, that means यहाँ से तुम्हारा एक समर ब्लॉक, that means फीडबैक पाथ आएगा, इसका गेन है -H1। तो ये तुम्हारा हो गया इसका, ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ, यस और नो। सो सिंपल, हम लोग को अब यहाँ पे नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ निकालना है और उसका गेन निकालना है। तो हमारे पास सपोज इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं, x1, ये तुम्हारा x2 है, x3 है, ये x4 है, और ये फाइनली तुम्हारा आउटपुट है। सो फॉरवर्ड पाथ दैट मीन्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचना है विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी नोड। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, फ्रॉम R टू X, X टू X2, X2 to X3, X3 to X4, and X4 to C। सो यहाँ पे हमारे पास पहला फॉरवर्ड पाथ है जिसका ट्रांसफर फंक्शन है G1, G2, G3। नाउ हमको पता लगाना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल के, दैट मींस डेल 1। सो डेल 1 इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस
सम ऑफ द नॉन टचिंग लूप ऑफ द रेस्पेक्टिव फॉरवर्ड पाथ। सो यहाँ पे कोई ऐसा लूप नहीं है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पे डेल 1 का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कोई दूसरा हमारे पास फॉरवर्ड पाथ भी नहीं है। सो देयर इज ओनली वन फॉरवर्ड पाथ एंड डेल के of that particular forward path is equal to 1. Now we have to find out the loop. So loop is equal to क्या हो जाएगा? So सबसे पहले देखो loop कहाँ पे है। First loop start from x1 to x2, x2 to x3 and again x1. So तुम्हारा क्या हो जाएगा? x1 to x2, x2 to x3 and again repeat to x1. That means g1, g2 and minus h1. So loop 1 का क्या हो जाएगा? g1, g2 into h1 minus of. ओके, और यहाँ पे देखो दूसरा फॉरवर्ड हमारे पास लूप है फ्रॉम x2, x3, x4 अगेन x2. So x2, x3, x2 और इसका फॉरवर्ड g3 एंड g2, g3 एंड अगेन रिपीट टू माइनस h2. सो दूसरा फॉरवर्ड पाथ जो है वो कितना है तुम्हारा? g2, g3 एंड h2 माइनस में. एनी डाउट? सो और इसके अलावा कोई भी हमारे पास इसका फॉरवर्ड पाथ नहीं है. सो अगर हम यहाँ पे मेसन्स गेन फॉर्मूला लगाते हैं, सो मेसन्स गेन फॉर्मूला दैट मींस द ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन फॉर्मूला होता है pk इनटू डेल के डिवाइडेड बाय डेल्टा. सो नाउ यहाँ पे एक ही फॉरवर्ड पाथ है. सो एंड उसका जो डेल के का पार्ट है उसका वैल्यू 1 है. सो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? g1 प्लस g1 इंटू g2 इंटू g3. और यहाँ पे डेल का फॉर्मूला होता है 1 माइनस सम ऑफ लूप दैट मीन्स L1 प्लस L2. सो L1 प्लस L2 करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा. सो फाइनली क्या होगा? g1 g2 इंटू h1 g1 g2 इंटू h1 प्लस g2 g3 इंटू h2. सो फाइनली यही तुम्हारा यहाँ इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा. एनी डाउट? That means the correct answer is option number A. Yes or no? Abhijit, yes or no? Yes, sir. Okay. Now problem number 1.6. Problem number 1.6. What is the statement of the problem? Statement of the problem: a linear time invariant system initially at rest. What do you mean by a LTI system initially at rest? In this, that means their initial value is equal to Zero. their initial value is equal to 0. 0, sir, initial value. okay. Now when they subjected to unit step input, their output response is equal to yt is equal to t into e to the power someone जो है किसी को क्लास में ये प्रॉब्लम हो रहा है. आई डोंट नो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है. जतिन का मैसेज आया, निधि का मैसेज आया. मे बी ये तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना ज्वाइन करने में? नहीं सर, मेरा तो नहीं. ओके, कोई बात नहीं है. दोस्त लोग को बोल रहे हैं किसी और दिन क्लास कर लेगा. ओके, सो द इनपुट रेस्पॉन्स जो है वो तुम्हारा yt is equal to t into e to the power minus t है. तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम क्या होगा वो निकालने के लिए बोला है. यस और नो? यस और नो?
सो 1 मार्क्स का है, जितना कम समय में जितना कम कैलकुलेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज द YT कितना है यहाँ पे, YT कितना है, ये हम जो स्क्रीन शेयर किए हुए तुम लोग को दिख रहा है। यस सर। सो YT इज इक्वल टू क्या था, YT is equal to t into e to the power minus t, and what is the CT? CT जो है तुम्हारा यूनिट स्टेप इनपुट है, सॉरी माना RT, that means input, and you know what is the definition of transfer function? Laplace transform of y output divided by Laplace transform of input. Yes or no? यस So सर। first of all, you have to find out the Laplace transform of output. That means we have to find out the Laplace transform of t into e to the power minus t. क्या होगा Laplace transform of t into e to the power minus t का? First of all, tell me what is the Laplace transform of t? What is the Laplace transform of t? T square by 2. T S square by 2. 1 by s square. 1 by s square. And you know, if from the property of Laplace transform, suppose ft is equal to Laplace transform of ft is equal to fs, then Laplace transform of ft into e to the power minus at क्या होता है इसका, f of s plus a. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 1 by s plus 1 का होल स्क्वायर. एनी डाउट? Any doubt? No sir. T into Laplace transform of t into e to the power minus at is equal to 1 by s plus 1 का whole square. Any doubt? Now again Laplace transform of output is equal to input is equal to Laplace transform of input is equal to 1 by s. 1 by s. So then find out the transfer function of the system. Find out the transfer function of the system. Find out the transfer function of the system. Laplace transform of output is equal to 1 by s plus 1 का whole square, and Laplace transform of input is equal to 1 by s. So क्या आएगा? Sir, s by s plus 1 का whole square. That means option number C. Actually again current चला गया है तो ये, so option number C correct answer. The correct answer is s by s plus 1 का whole square. ओके, सो देखो जो प्रॉब्लम गेट में आता है, ये तो तुम्हारा 91, 92, 93, 95, 98, 92, 2000 में आया हुआ है. सो प्रॉब्लम मेनली जो है वो गेट का प्रॉब्लम तुम आसानी से बना सकते हो अगर तुम्हारा प्रैक्टिस एंड बेसिक नॉलेज क्लियर रहेगा. जरूरी नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आता है. समटाइम्स बहुत इजी न्यूमेरिकल भी आता है जिससे तुमको उसको आसानी से उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करके स्कोर कर सकते हो. बट बेसिक नॉलेज तुमको क्लियर होना चाहिए. डेट मीन्स मेसन्स गेन फार्मूला का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए. फॉरवर्ड पाथ किसको कहते हैं, लूप किसको कहते हैं, ओके, एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सो तुम इजीली तुम लोग जो है इसको गेट का प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो. बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं रहता है जिससे तुम लोग को ये टेंशन लेना है. हेलो हेलो. Yes sir. Yes sir. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम 2002 में आया हुआ है. प्लीज नोट डाउन द प्रॉब्लम. द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, the transfer function of the system
हेलो, Yes, sir. the transfer function of system described by d square y by dt square plus dy by dt is equal to du by dt plus 2u. Happy birthday, sir. Happy birthday, sir. Happy birthday, sir. Hello, hello, I'm audible Yes, to sir. you? Okay. Sir, happy birthday, sir, So, आपका. नहीं, चलो क्लास यहाँ पे ध्यान इसको न्यूमेरिकल बनाते हैं. Okay, so find out the transfer function of the system. Again, बहुत इजी प्रॉब्लम दिया हुआ है 2002 में, हम उस प्रॉब्लम को नोट करते हैं. सो इक्वेशन क्या था हमारे पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी यू बाई डी टी प्लस 2u. यस और नो. सो हमको क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है. सो यू नो यहाँ पे आउटपुट क्या है, u है, इनपुट क्या है, सॉरी आउटपुट y है एंड इनपुट क्या है u. सो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ys by us. व्हाट इज ys? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट. सो इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या बताए थे, इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या बताए थे, जब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे इन द बोथ साइड, तो ये तुम्हारा यू नो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर इंटू वाई एस प्लस एस इंटू वाई एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एस इंटू यू एस प्लस 2 इंटू यू एस. यस और नो. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस एस इंटू वाई एस इक्वल टू एस प्लस 2 इंटू यू एस. एनी डाउट? तो यहां से तुम्हारा वाई एस बाय यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस प्लस 2 बाय एस स्क्वायर प्लस एस. एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. सो करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए. यस और नो? Yes, sir. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो देखो कितना आसान प्रॉब्लम रहता है ना, जिसको हम लोग को आसानी से हम लोग प्रॉब्लम को बना सकते हैं, बहुत कोई भी दिक्कत नहीं होता है. नाउ प्रॉब्लम नंबर 1.8 2003 में, a control system is defined by the following mathematical expression. The response of a system as t tends to infinity is, x का वैल्यू क्या होगा when t tends to infinity. हेलो, Yes, sir. तो बताओ इसको किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे हम, So उसका Laplace transform लेना होगा. देन उसके बाद फिर s is equals to s tends to 0 करना होगा, sir. फाइनल वैल्यू थ्योरम. Yes, sir. Finally. फाइनल वैल्यू थ्योरम. तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को नोट करते हैं. Happy birthday, Madam, sir. Happy birthday, Madam, sir. हेलो, Yes, sir. हेलो, यस Yes, sir. सो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को ये करते हैं, प्रॉब्लम को नोट करते हैं. प्रॉब्लम में क्या था, प्रॉब्लम में क्या था, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस 6 इंटू डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t. यस और नो? ये प्रॉब्लम था एंड हमको निकालना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x t इक्वल टू इंफिनिटी पे उसका मैग्नीट्यूड कितना है. दैट मींस ये न्यूमेरिकल जो है वो फाइनल वैल्यू थ्योरम का न्यूमेरिकल है. तो सबसे पहले फाइनल वैल्यू थ्योरम हम तुम लोग को रिवाइज करवा दे रहे हैं. सो फाइनल वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर t इक्वल टू इंफिनिटी चाहिए,
सो उसका जो वैल्यू होगा वो होगा लिमिट s टेंस टू 0 इंटू s इंटू एक्स। यस और नो, ये फार्मूला होता है फाइनल वैल्यू थ्योरम का। सो सबसे पहले तुमको एक्सेस निकालना पड़ेगा। अगेन इसमें हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, सो हमारे पास यहाँ पर भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर इंटू एक्स एस प्लस 6 इंटू एक्स एस, ओके, इक्वल टू 12 बाई एस प्लस माइनस 12 सॉरी यस इसको 12 इंटू एस प्लस 2। यस और नो, यस और नो। Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं तो एस स्क्वायर प्लस 6 इंटू एस होगा इंटू एक्स एस होगा एंड 12 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो एस इंटू एस प्लस 2 हो जाएगा एंड एस प्लस 2 माइनस एस हो जाएगा, एस एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 24 बाई एस इंटू एस प्लस 2। सो फाइनली एक्स एस इक्वल टू हो जाएगा 24 बाई एस इंटू एस प्लस 1 सॉरी एस प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6s। यस और नो, yes or no? Yes, sir. Okay, so finally what is the value of क्या एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बताओ हमको। तो x at t इक्वल टू इंफिनिटी, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 x इंटू एक्स एस। जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो बताओ। इंफिनिटी चला जाएगा सर। वहाँ सर 5x का एक टर्म था ना क्वेश्चन में, कहाँ पे 5s था, क्वेश्चन में ओ सॉरी यहाँ पे 5x भी था, सॉरी 5x भी था। तो यहाँ 5x भी था, तो यहाँ पर प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 सॉरी। ओके, सो हमारा क्या हो जाएगा फाइनली, एस एस कैंसिल हो जाएगा, 24 बाय एस प्लस 2 एंड 2 एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 लिमिट एक्स टेंस टू 0। सो तुम जब एस इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में 24 नीचे में 2 इंटू 5 दैट मीन्स 2.4 हो जाएगा। एनी डाउट, एनी डाउट? नो सर। ओके, सो अभी हम लोग का क्लास खत्म करते हैं, अगले क्लास में हम इसको आगे पढ़ेंगे। जब भी हमारा ये होगा हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। ओके, एनी डाउट? सर इसके पहले वाला पेज दिखाइएगा, क्योंकि तुम वो उसमें हाँ सर इसके पहले वाले पेज क्या पे बोले? सॉल्यूशन, हाँ वो दिखाइएगा। किससे तुमको फिर 11:10 से क्लास भी है, देख लो। कौन, ये वाला बस प्रॉब्लम, एक बार दिखाइए, उसका स्क्रीनशॉट लेना है मेरे को उसका। ये वाला हाँ, प्रॉब्लम, उसके पहले वाला, हाँ सर हाँ, ये देखो ये ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ऑलरेडी ये रिकॉर्डिंग वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ रहेगा तुम्हारा यूट्यूब में, तुम देख सकते हो। ओके। ओके, थैंक यू।